Hello learners, welcome to once again to NTA UGC नेट पेपर टू एजुकेशन चैनल। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आई हैव ऑलरेडी रिटन इट इज़ NTA UGC नेट पेपर टू एजुकेशन चैनल. If you haven't subscribed to my channel, do subscribe and like the videos which are really very informative for your upcoming NET examination if you are preparing for paper 2 education subject. As per the latest syllabus of 2019 onwards, whatever contents are there in this particular paper 2, I will be going to explain you each and every topic in detail. Last time, as you know, that we had studied the seventh point, that is Yashwal committee report that came in the year 2009, and today we are going to study this one, that is the eighth point, which I have highlighted over here, National Curriculum Framework for Teacher Education in 2009. Friends, we are studying chapter number 2 of paper 2 education subject, and today we are going to study this particular point, that is the eighth one, National Curriculum Framework for Teacher Education. National Curriculum Framework for Teacher Education, it came in the year 2009 by NCTE in a draft form, and the title of that draft was written like this. It was titled like National Curriculum Framework for Teacher Education, which is abbreviated as NCFTE, and towards preparing professional and human teacher. This is the part 1 because it's a very lengthy topic, so I have bifurcated it into certain parts. So without further ado, let's just start with today's session. So friends, you could see in the slide, see over here, the draft contains certain chapters. So in total 6 chapters are there, and each chapter is focusing upon certain particular upgradation of teacher, or in the field of teacher education, how the teacher can upgrade his or her personal knowledge, professional knowledge, and what certain activities should be done by the government in order to upgrade the teacher education. So in relation to that, this 6 chapters are given. The draft of which is actually issued by NCTE, it includes the very first thing, that is preface. So I have written it over here in a brief way so that you all could go through that and you could understand. Let's just go through that simultaneously. Preface. It says transaction, just 1 minute. I hope the slide is visible to you. The preface says that transaction of the curriculum and evaluating the developing teacher determine the extent to which ideas conceptualized are put into practice, which means that whatever theoretical knowledge is been there in the teacher education, it needs to be put into practice. Then it says the initial draft of the NCFT 2009 was developed by an expert committee comprising of Professor C.L. Anand, Professor S.V.S. Chaudhary, Professor V.K. Sabharwal, C. Sheshadri, R.S. Khan, Professor Raja Ganeshan, L.C. Singh, based upon the ideas generated in a series of the intensive deliberations by the members of the committee and famous or eminent scholars, teacher educators, teachers, trainee teachers, representatives of NGOs, faculty of RIE, that is regional institutions of education of NCRTE, SCRTs, DIETs, IASC, CTs, University Department of Education and State Departments of Education at the 2 national consultative meets held at Udaipur and Hyderabad. कहना ये चाहते हैं कि ये जब डेवलप हुई तो एक्सपर्ट कमेटी को बुलाया गया था, और ये जब इनिशियल ड्राफ्ट NCFT 2009 का आया तो उसमें किन्होंने कंट्रीब्यूट किया था? द एक्सपर्ट कमेटी कंप्राइजेस ऑफ ऑल दिस एमिनेंट faculty members, and along with that even the national and state level institutions which contributed in the development of this draft. Then it mentions in the preface that the constructive suggestions made by the General Council of the NCTE while approving it in principle after detailed deliberations as per the directions of the council. Which council? NCTE council. A small group of the expert comprising of Professor Seshadri, Professor A.K. Sharma, Shyam Menon, Poonam Batra and Anjali Naroha was entrusted the task to improve the framework in the light of suggestions made by the members. So members ने suggestions तो दे दिए, initial draft तो prepare कर दिया, पर उसका जो
फाइनल एक आउटलुक बनवाना था या फ्रेमवर्क बनवाना था, और वो सजेशंस को ध्यान रखने का काम ये सब लोगों ने एक कह सकते हैं डीपली किया है. So this was all about the preface that comprised of the initial draft of NCFT 2009. So this came in the year 2009. This was a preface that's been given in NCFT 2009 draft. Now, अभी मैंने दो मिनट पहले बोला कि 6 chapters are comprised in this. So let's just start with the chapter number first. Chapter number first, the name of it is Context, Concern and Vision of Teacher Education. यानी कि किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, तो भाई टीचर एजुकेशन के लिए. कौन से कंसर्न में, यानी कि क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ होनी चाहिए, विजन क्या है टीचर एजुकेशन फील्ड में, या फिर टीचर एजुकेशन को कुछ डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है, कौन सी ज़रूरत है, कैसी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, वो सब कुछ चैप्टर 1 में दिया है. The draft comprises of 1.1, that is the very first thing, that is introduction in chapter number 1. It says 2 major developments in the recent years form the background to the present reform in teacher education. Recent years मतलब ये 2009 में जब आया था उसकी बात की है फ्रेंड्स. The political recognition of the universalization of elementary education as a legitimate demand and the state committee towards UE in the form of right of children to free and compulsory education act 2009. कहने का मतलब है कि 2009 में दो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को एक पर्टिकुलर वे में आप कह सकते हो डेवलपमेंट के पर्पज़ से बाहर लाया गया था. एक तो था यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है. दिस वुड इंक्रीज द डिमांड मैनीफोल्ड फॉर क्वालिफाइड एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स. The country has to address the need of supplying well-qualified and professionally trained teachers in larger numbers in the coming years. कहने का मतलब है जिस तरीके से एजुकेशन फील्ड में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से ट्रेन टीचर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है इन द लार्जर नंबर इन द अपकमिंग ईयर्स. सो सप्लाई ऑफ वेल क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनली ट्रेन टीचर्स विल बी really much needed, and the government should be focusing more upon it in order to make the teacher professionally trained. फिर कहते हैं द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 also placed different demands and expectations of the teacher which needs to be addressed both by the initial and continuing teacher education. कहने का मतलब है इवन यही चीज़, कौन सी चीज़, तो टीचर्स को प्रोफेशनली ट्रेंड बनाओ, तो वही चीज़ 2005 में NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी बोली गई है. फिर कहते हैं इनिशियल टीचर एजुकेशन स्पेशली हैज़ अ मेजर पार्ट टू प्ले इन द मेकिंग ऑफ अ टीचर. यानी कि अगर टीचर पढ़ा लिखा है, एक प्रोफेशनली एजुकेटेड वेल ट्रेंड है, देन इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर हिम और हर टू मेक द क्लास effective and efficient, and along with that an active one. Students participation will also be there at a maximum level. फिर कहते हैं the changing school context and its demands, that is given in 1.2. The act mandates that the teacher should refrain from inflicting corporal punishment, complete the entire curriculum within the given time period, assess the students, hold parents meeting and apprise them, and as a part of the school management committee organize the overall running of the school. कहने का मतलब है कि एक टीचर जो है प्रोफेशनली ट्रेन जो है, या फिर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसमें ये ध्यान रखो कि ही और शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट. बच्चे को मारना नहीं है, डरा के या धमका के नहीं रखना है. दैट इज़ ऑल अबाउट कॉर्पोरल पनिशमेंट. आपको पता होगा पहले तो हमें जो पहले के ज़माने में टीचर्स थे वो बहुत मारा भी करते थे, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक पनिशमेंट भी दिया करते थे, स्केल से मार दिया या फिर लाठी से मारा. लेकिन अभी ये कॉर्पोरल पनिशमेंट में गिना जाता है, गुनाह है. सो एवरी टीचर शुड रिफ्रेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू दिस सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट. देन द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द एंटायर करिकुलम, यानी कि जितने गिवन टाइम पीरियड में करिकुलम या सिलेबस कंप्लीट कराओ, बच्चों की असेसमेंट भी कराओ. असेसमेंट अभी तो कैसी हो गई है, FAQ SAQ हो गई है. FAQ दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट हो गया है, इंटरनल एग्ज़ाम ले ली, वीकली एग्ज़ाम ले ली, फिर जो एनुअल एग्ज़ाम होती है सेमेस्टर के बाद वाली वो हो गई. तो उस तरीके से बच्चे का असेसमेंट भी हो जाता है. पेरेंट्स मीटिंग भी आप कराओ. अपराइज देम, अपराइज whom, तो अपराइज स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एंड ऑर्गेनाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल सो दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों की हो पाए.
फिर कहते हैं द एक्ट वाइड सेक्शन 29 ऑफ 2 एम्फोसाइजेस द फॉलोइंग एरियाज विच लेज डाउन द करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। कहते हैं कि करिकुलम और इवैल्यूएशन प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर एनसीएफटी की एक्ट है उसमें 29 ऑफ 2 जो दिया है वो सेक्शन में लिखा गया है ये सारे पॉइंट्स। तो एक के बाद एक देख लेते हैं। नंबर 1, कन्फर्मिटी विद द वैल्यूज एंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि दिया गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड ड्यूरिंग द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये मान के चलना है कि ये तो सब बच्चों को मिलनी ही चाहिए, उनका हक है। फिर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के ऊपर फोकस किया गया है। स्कूल शुड फोकस अपॉन दिस, बिल्डिंग अप चाइल्ड्स नॉलेज, पोटेंशियलिटी एंड टैलेंट, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। मेंटल एबिलिटीज़ कैसे, तो कोई कॉग्निटिव एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी बच्चों की बढ़ पाए उस तरीके का क्विज़ हो गया, डिबेट हो गया, या फिर ऐसे कोई गेम्स खिला दी आपने तो वो सब भी इन्वॉल्व करो। पढ़ाई के साथ साथ पीटी का क्लास हो गया, खेलने कूदने का क्लास हो गया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, फील्ड वर्क दे दिया, तो वो भी एक फुलेस्ट एक्सटेंट में उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएगा। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, डिस्कवरी लर्निंग, एक्सप्लोरेशन इन चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड मैनर। अभी तो आप देख सकते हो कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है हमारी सरकार, विच इज़ रियली वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। फिर कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शेल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी इन चिल्ड्रंस मदर टंग, चाइल्ड्स मदर टंग। ये तो अभी भी जो नई एनईपी आई है 2020 उसमें भी लिखा गया है कि मदर टंग में अगर बच्चा सीखता है तो वो जल्दी ग्रास्प भी कर पाएगा जो पढ़ा है वो। मेकिंग द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रॉमा, एंग्जाइटी एंड हेल्पिंग द चाइल्ड टू एक्सप्रेस व्यूज़ फ्रीली, यानी कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात की है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं CCE, आपने देखा होगा अभी तो CBSE स्कूल्स में या फिर अभी तो स्टेट बोर्ड स्कूल्स में भी आ गया है CCE, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। कैसे आप करते हो, तो वीकली टेस्ट ले लिया, डिबेट हो गया, एलोक्यूशन हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया जो कि इंटरनल एग्ज़ाम होती है, सेमेस्टर वाइज होती है। फिर वो दो FA1 एंड FA2 दो फॉर्मेटिव असेसमेंट को इकट्ठा करके एक SA1 बनता है, दैट इज समेटिव असेसमेंट 1। तो वो सब कहते हैं हम CCE, दैट इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। वाई? देन इट इज़ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स नॉलेज, हीज और हर एबिलिटी टू अप्लाई द सेम। फिर कहते हैं प्रेजेंट टीचर एजुकेशन सिनारियो। With increasing school enrollments and the launch of Pan-India primary education development programs such as Sarva Shiksha Abhiyan 2002 to achieve UEE, that is Universal Elementary Education, the Operation Blackboard 1986 and the District Primary Education Program 1995, there was an increase in the demand for teachers. ये सारे जो आप कह सकते हो एक रिवॉल्यूशनाइज्ड एजुकेशन फील्ड में आया है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड बोल दो या जो भी है, तो इन सब ने टीचर्स की डिमांड बढ़ा दी है। ये फुल फॉर्म गाइस याद रखना, सर्व शिक्षा अभियान, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ये एक नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कौन से साल में आया था, तो 1986 में इसका जिक्र किया गया था और ये एक कमिटी में इसका पर्टिकुलर आप कह सकते हो स्पेसिफाई किया था कि इस तरीके का 1986 की जो पॉलिसी आई थी एजुकेशन के ऊपर उसमें ये स्पेसिफाई किया गया है। फिर कहते हैं टीचर एजुकेशन रिफॉर्म पर्सपेक्टिव। टीचर एजुकेशन रिफॉर्म पर्सपेक्टिव पास्ट में क्या था और अभी प्रेजेंट में क्या होना चाहिए। It is urgent to restore the dignity of school teaching as a profession as provide more incentives for qualified and committed teachers. Non-teaching official duties such as election-related responsibilities should not be allowed to interfere with the teaching process. ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोला गया है। अभी क्या हो रहा है, सारे गवर्नमेंट टीचर्स को जब भी इलेक्शन आती है या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंटल प्रोसेस होता है तो उनको इलेक्शन के काम में जोड़ा जाता है या फिर स्कूल में वो काम दिया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि नॉन टीचिंग ऑफिशियल ड्यूटी सच एज इलेक्शन ड्यूटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब उनको इंटरफियर करती है टीचिंग प्रोसेस में, तो ये सब हटा देनी चाहिए। So here it says that non-teaching official duties such as election related response should not be allowed, यानी कि ये सब में टीचर्स को मत इन्वॉल्व करो। The training of teachers is a major concern of at present
एज बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस। प्री सर्विस का मतलब क्या होता है कि जब आप जॉब में नहीं हो और उसके पहले जो कोर्स आप पढ़ रहे हो, जैसे कि पीटीसी हो गया, मॉन्टेसरी हो गया, बीएड हो गया, दैट इज़ प्री सर्विस। इन सर्विस मतलब कि ड्यूरिंग द सर्विस, आप सर्विस के अंदर रह के जो काम कर रहे हो वो, जैसे कि आपने बीएड कर ली, आप एक स्कूल में जॉब कर रहे हो और वहाँ पे कोई आपका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया है या ट्रेनिंग पर्पज से आपको कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करना है, तो उसे हम इन सर्विस कहते हैं, यानी कि सर्विस के दौरान। तो ये सब में अगर टीचर का इन्वॉल्वमेंट आप बढ़ाओगे तो क्या होगा कि अभी जो टीचर की ज़रूरत है या फिर ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत है वो भी हमें मिल जाएगी, एंड पुअरली मैनेज जो मोस्ट स्टेट्स है उसमें भी ये जो क्लासरूम जो प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे, ओनली एंड ओनली इफ़ टीचर्स आर ट्रेन्ड। फिर कहते हैं अर्जेंसी ऑफ रिफॉर्मिंग टीचर एजुकेशन। बहुत ज़रूरी हो गया है कि टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कुछ रिफॉर्म लाए जाए। On the positive side, with a view to achieving coordinated development of teacher education, the National Council for Teacher Education, full form याद रखना, took up a number of initiatives during the last decade. It joined hands with the National Assessment and Accreditation Council, that is NAAC. ये 110% एंड हमारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेट एग्ज़ाम के लिए फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल to foster quality and assurance and sustenance, and with the direct distance education council DEC to ensure integrated development of in-service teacher education under open and distance learning mode. यहाँ 3 चीज़ों की बात की गई है, कहते हैं एक NCTE, एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, एंड तीसरा क्या कहा गया है, NAAC ऑर्गेनाइजेशन या कमिटी। ये 3 की वजह से टीचर एजुकेशन फील्ड में या इंस्टीट्यूशन में काफ़ी बदलाव लाया गया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइड। इट ऑल्सो entered into the collaboration with the Rehabilitation Council of India in 2002 and in 2005 to develop curriculum on inclusive education and make it a part of the general teacher education program। कहना ये चाहते हैं कि Rehabilitation Council of India, इसे कहते हैं हम, जो आपका 10th चैप्टर है RCI, ये जो 2010 और 2005 वाला जो है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों के लिए बात की गई है, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हर बच्चा पढ़ पाए, लिख पाए, समझ पाए और अपना करियर बना पाए। तो ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जनरल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अपग्रेडेशन के लिए ये सारा जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर बोला गया है टीचर एजुकेशन फील्ड में एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। Upgrading elementary teacher education calls for participatory curriculum, planning involving all stakeholders, modular organizations of curriculum in terms of critically engaging with theories and bringing practice with a perspective and a professional approach to teacher education processes। कहने का मतलब है कि इसमें stakeholders कौन होते हैं कि जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में जो स्कूल में होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होता है, उसमें एसोसिएटेड हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स कहे जाते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो वो करिकुलम या सिलेबस हो, उसके प्लानिंग में जो इन्वॉल्व है वो लोग, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, वो किस तरीके से कैसे मोड पे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कैसे सिलेबस होना चाहिए, कौन से एज ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, ये सब जो डिसाइड करते हैं वो सब अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जो भी उन्होंने अब तक कह सकते हो कि बनाया गया है फ्रेमवर्क उसमें। फिर कहते हैं सेकेंडरी टीचर एजुकेशन। द 1 year सेकेंड बैचलर्स डिग्री मॉडल सीम्स टू हैव आउटलिव्ड इट्स रेलेवेंस। कहने का मतलब है यहाँ 1 साल के बीएड की बात कर रहे हैं। ये कब आया था? एनसीएफटीई हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स 2009 में। तो उनका जो ड्राफ्ट आया तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है, उस टाइम पे तो डेफिनेटली बीएड 1 साल का ही था, बीएड 2 साल का तो 2016 से हुआ है, 2015 में, यस 2015 से हुआ है। तो ये तो 2009 की बात है। तो 2009 में बोला गया था इट इज़ डिजायरेबल विद इन अ फाइनाइट टाइम फ्रेम दैट एक्सिस्टिंग 1 year second bachelor's degree program is structurally transformed to a 2 year with deeper and more protected engagement with school-based experience, reflective and critical engagement with theory। ये 110% important है for your net examination। सबसे पहली बात,
ये 2 साल का बीएड वाला जो फ्रेमवर्क का बोला गया है वो कौन सी कमिटी में बोला गया था, या फिर आप कह सकते हैं वो नेट वाले कि किस में ये इसका जिक्र हुआ था। तो NCFT 2009 के जो ड्राफ्ट में सबसे पहली बार इसका जिक्र हुआ था कि 1 साल की जगह पे 2 साल का हो जाता है, तो एक डीपर नॉलेज टीचर को मिलेगी, प्री सर्विस टीचर्स या एस्पायरिंग टीचर्स को, और स्कूल बेस्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि उनका जो 6 महीने का इंटर्नशिप होता है स्कूल में, उससे उनको रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगा। और रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल एंगेजमेंट विथ थियरी अब तक जो पढ़ी है 2 सेमेस्टर से, वो तीसरे सेमेस्टर में अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप में जाएंगे और फिर उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी होगा। सो क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी डेवलप होगी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी हो जाएगी, और थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगा। तो वंस अगेन कहती हूँ, ये NCFT का ड्राफ्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जिक्र किया गया है कि 1 साल की जगह पे 2 साल का बीएड हो जाना चाहिए, तो कि थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को मिल पाए। फिर कहते हैं सिस्टमैटिक कंसर्न्स फॉर टीचर एजुकेशन। द NCF हैज़ डिस्क्राइब्ड द करंट कंसर्न्स ऑफ टीचर एजुकेशन एज फॉलो। Experience in the practice of teacher education indicate that knowledge is treated as given, embedded in the curriculum and accepted without question. There is no engagement with the curriculum. Curriculum, syllabi and textbooks are never critically examined by the student teacher or the regular teacher. कहने का मतलब है जो दिया गया है अब तक करिकुलम में उसी को कोई क्वेश्चन नहीं करता, जैसा दिया गया है बस उसी को फॉलो करते करते ट्रेडिशनल वे से जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ाते जाते थे। यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन करने का करिकुलम की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे, वेदर वो सिलेबस हो, करिकुलम हो या टेक्स्ट बुक हो, वो कभी किसी ने उतना ध्यान ही नहीं दिया। फिर दूसरी बात बोली है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर नीड्स टू बी एनहांस बट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम डज नॉट रिकग्नाइज द सेंट्रलिटी ऑफ द लैंग्वेज इन द करिकुलम। ये 2009 में बोला गया है। ये जो NCF ने ये चीज़ बोली थी, वही 2009 में NCFT ने भी बोला है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टीचर की एनहांस करने की ज़रूरत है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। नॉट क्रिटिकली ऑफेंसिव टू एनी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ टीचर, बट एक जनरल लेवल पे कहती हूँ। सपोज आप इंग्लिश के टीचर हो और आपकी फ्लुएंसी ही नहीं है, देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ गेटिंग दैट डिग्री। सो हियर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर्स नीड्स टू बी एनहांस। कहने का मतलब है कि जो भी आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, उसमें अगर आप 100% एक्सपर्टीज़ रखते हो तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है वो अच्छे से आप डिलीवर कर पाओगे करिकुलम में, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर तो चला जाएगा, बट वो अभी हो नहीं पा रहा है। फिर कहते हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स लिटिल स्कोप फॉर स्टूडेंट टीचर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। ये जब 1 साल का बीएड था उसकी बात की गई है कि उसमें क्या होता था कि स्कोप बच्चों को प्री सर्विस टीचर एडुकेटर्स जो टीचर एस्पायरिंग टीचर्स जो है प्री सर्विस के बीएड कर रहे हैं वो लोग स्टूडेंट टीचर्स बोले जाते हैं, तो वो लोगों को बहुत ही कम चांस मिलता था कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले पाए। जो थियरी पढ़ी थी 1 साल में बस वही डिग्री हो गई उनकी और फिर वो जॉब ढूंढने चले जाते थे। तो वो फोकस थियरी पे ज़्यादा रहता था, प्रैक्टिकल पे कम। ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट दे दिए 2-4 तो बस ख़त्म हो जाता था। फिर कहते हैं देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स टू एग्जामिन देयर ओन बायसेस एंड बिलीव्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस द पार्ट ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स एंड इंक्वायरी। यहाँ पे क्या होता था 1 साल के बीएड वाले या प्री सर्विस कोई भी आप टीचर एजुकेशन का कोर्स ले लो, उसमें कॉलेज के अंदर ही आपको क्लासरूम दिए जाते थे और उसी में आपके क्लासमेट्स को आपको पढ़ाने थे और कैसे समझ के कि वो स्कूल के बच्चे हैं। तो क्लासरूम डिस्कोर्स यानी कि जो एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन बच्चों के साथ होती है वो तो आपने फेस ही नहीं की, तो बच्चों को वो एस्पायरिंग टीचर्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी वैसे नहीं मिल जाती थी कि वो खुद कैसे पढ़ाते हैं, कैसे उनकी बिलीफ है, कैसे वो रिफ्लेक्ट कर पाते हैं अपने ही स्ट्रेंथ या वीकनेस पे, वो सब यहाँ पे वो नहीं कर पाते थे। फिर कहते हैं थियरी कोर्सेज हैज नो क्लियर लिंक विद प्रैक्टिकल कोर्सेज एंड ग्राउंड रियलिटीज। वंस अगेन इट हैज सेड दैट ओनली थियरीज इज मोर फोकस अपॉन रादर देन द प्रैक्टिकल वन। The evaluation system followed in teacher education program is too information oriented, excessively quantitative and lacks comprehensiveness. Once again it says information ही दी गई है ज़्यादा से ज़्यादा और जो कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। The present evaluation protocol has no place for evaluating this aspects। और ये सब जो चीज़ें हमने बोली है वो कैसे इवेल्यूएट करनी है उसके बारे में भी नहीं कहा गया है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। Then it says contemporary context and concerns that needs to inform teacher education reform. Inclusive education में क्या कहा गया है? To enable the implementation of the persons with disability (PWD)
Equal Opportunities Protection and Full Participation Act 1996 Act, teacher education institution will need to reframe their program courses. Most important once again, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, सारे बच्चों को स्टडी कर पाए या एजुकेशन ले पाए, उस तरीके की परिस्थिति या उस तरीके का क्लासरूम हमें जनरेट करना है, कंड्यूसिव या कंफर्टेबल या बच्चों को कन्वीनियंट रहे उस तरीके के क्लासरूम देने हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो था 1996 में आया था, उसमें भी बोला गया कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो फ्रेमवर्क है वो रिफ्रेम करके प्रोग्राम उस तरीके से बनाने हैं। फिर कहा गया पर्सपेक्टिव फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आए यानी कि समझ लेना है कि लंबे टाइम तक टिके रहे उस तरीके का प्रोग्राम बनाने की बात की गई है। पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर इक्विटी दैट डेवलप वैल्यूज फॉर पीस, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स ऑफ ऑल एंड रिस्पेक्ट एंड वैल्यू वर्क, वो सब भी इसमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए, वैसी बात की गई है। In the present ecological crisis promoted by extremely commercialized and competitive lifestyle, teachers and children need to be educated to change the consumption pattern and the way they look at the natural resources. यहाँ पे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ नहीं हो पा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और उसका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है इन अ प्रॉपर वे कि आगे जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज यूज़ कर पाए। तो वो टीचर्स को, चिल्ड्रंस को भी समझने की बात है। तो वो एक इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाता है जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। फिर मेंशन करते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी नॉलेज इन एजुकेशन टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स इन आइडेंटिफाइंग एंट्री पॉइंट्स इन द करिकुलम एंड टेक्सचुअल मटेरियल विच कॉल फॉर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग सीक्वेंस एंड एपिसोड्स बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड लोकल स्पेसिफिक्स। यानी कि जो लोकल या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है या रियल लाइफ जो कॉन्सिक्वेंस है उसको फोकस में लेके पढ़ाने की बात की गई है। रियल लाइफ सोसाइटल एक्टिविटीज़ है उसको आप बेस बना के एजुकेशन प्रोवाइड करो। देन इट सेज ICT इन स्कूल एंड e-लर्निंग। इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ फैशन स्टेटमेंट टू हैव कंप्यूटर्स और मल्टीमीडिया इन स्कूल्स। अभी तो फैशन ही हो गया है सच में। द रिजल्ट्स बीइंग इन स्पाइट ऑफ इट्स पोटेंशियल टू मेक लर्निंग लिबरेटिंग, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज ऑफन नॉट मोर कॉस्मेटिक। कहने का मतलब है दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, वाईफाई, ये सब एवरी इंस्टीट्यूशन इज़ राइट नाउ हैविंग, बट ये फैशन स्टेटमेंट नहीं बनना चाहिए, एक पोटेंशियल डेवलप करने की बात है। तो ICT आप लाओ, 100% इसकी ज़रूरत है। e-लर्निंग आप फोकस करो, प्रमोट ज़्यादा करो, लेकिन वो प्रोडक्टिव वे में बात की गई है। फॉर अ मीनिंगफुल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस टू टेक प्लेस, टीचर्स नीड टू इम्बाइब ICT नॉलेज प्रॉपरली इन देमसेल्व्स सो दैट दे कैन डिलीवर द नॉलेज अमंग द स्टूडेंट्स प्रॉपरली। जैसे कि अभी देखो आप पढ़ रहे हो, वो भी एक ICT बेस्ड एजुकेशन है। तो ये सब एक मीनिंगफुल वे में अगर आपको करवाना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना है, तो पहले तो टीचर को ही ये सब ICT नॉलेज लेना पड़ेगा, सो दैट व्हाट विल हैपन, ही और शी कैन मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। फिर कहते हैं प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। प्रिपेयरिंग वन फॉर प्रोफेशन इज एन आर्ड्यूअस टास्क एंड इट इन्वॉल्व्स एक्शन फ्रॉम मल्टीपल फ्रंट्स एंड पर्सपेक्टिव। तो होलिस्टिक टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट की बात की गई है। प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स टू फोकस ऑन पेडागोजीज अप्रोप्रिएट फॉर एडल्ट लर्नर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स। पैडागोजिकल लर्निंग की बात की गई है जो कि आपका 7th चैप्टर है, एंड्रागोजी पैडागोजी। कहा गया है एडल्ट लर्नर्स के ऊपर भी ध्यान दो और उनके लिए भी करिकुलम उस तरीके का बनाओ। फिर कहते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन, द सेंट्रल, कहने का मतलब है द सेंट्रल एडमिशन प्रोसीजर। फिर कहते हैं, एक मिनट, द सेंट्रल एडमिशन प्रोसीजर, व्हाट इट सेज, सी the central admission procedure, common curriculum, centralized examination and evaluation system have stifled institutional initiatives in admission, curriculum design and evaluation, and very little space is left for institutional self-expression. There is a need to facilitate a space for such innovation to take place so that the policy can draw from them. कहने का मतलब है रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इवैल्यूएशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम उस तरीके की बनानी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी फोकस रहे और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी हो पाए। In spite of these constraining conditions, there are and have been a number of initiatives that could be drawn from. बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जिसमें नंबर्स ऑफ इनिशिएटिव लिए गए हैं और उसमें से भी हम कुछ ना कुछ नया कर ही सकते हैं। A case in point is a 4-year integrated Bachelor of Elementary Education (BLEd) program for the preparation of elementary school teachers offered by
सिलेक्टेड अफिलिएटेड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके का इनिशिएटिव हो सकता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए। तो जैसे कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड BLL हो गया कोर्स, तो वो कहाँ पे हुआ था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुआ है। और अभी तो आप देखो IIT गांधीनगर और बहुत सारे ऐसे अफिलिएटेड कॉलेजेस में भी ये अभी से स्टार्ट होने वाला है या हो गया है। और कहा गया है कि नए NEP 2020 के हिसाब से फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर इंटीग्रेटेड ही कोर्सेज चालू होने, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बट अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ये होने वाला है in order to merge the bachelor as well as the master degree। तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये जो था 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का मास्टर, उसकी जगह पे व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन 4 साल में हो जाएगा, यानी कि मास्टर डिग्री का 1 साल कम हो गया। तो 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन एंड 1 ईयर का मास्टर, सो 4 years इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री कोर्स। फिर कहा गया है NCERT's experiments with a 4-year integrated program leading to the degree of BSc Ed 2 year BEd प्रोग्राम, यानी कि ये देखो क्लैरिफाई किया है 3 साल का सपोज आप BSc करते हो और BEd कितने साल का होगा, 2 साल का, तो टोटल कितने हुए आपके 5। लेकिन यहाँ पे अगर 1 साल में ये मास्टर डिग्री भी इसमें आ गई, लेकिन अगर आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो 1 साल आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दिस विल बी कॉल्ड एज BSc Ed, दैट इज BSc BEd। 2 year BEd का प्रोग्राम जो अगर इंटीग्रेट कर देते हो तो MSc Ed आर अदर एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड की बात की गई है जो कि अभी से होने भी वाला है, बहुत सारी जगह पे ये हो भी गया है। पर दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ और नॉट ओनली ऑफ टीचर्स बट ऑल्सो ऑफ स्टूडेंट्स। Similar innovations are also being tried out in other institutions across the country. Several initiatives for providing academic support to in-service teachers include the setting up of resource center। ये most important है फ्रेंड्स, रिसोर्स सेंटर्स। अगर रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे, ICT टेक्नोलॉजी है या फिर स्मार्ट बोर्ड है या फिर आप कह सकते हो स्मार्ट, अभी तो वो LED TV वाला आ गया है कि क्लास में स्मार्ट TV लगाए और उसमें वो पेन से, डिजिटल पेन से पढ़ाते हैं। तो ऑल दिस इफ सच ट्रेनिंग इज़ नॉट गिवन और पर्टिकुलर रिसोर्स सेंटर्स नहीं बनाए गए हैं कि टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाए, तो टीचर कैसे पढ़ेंगे। तो रिसोर्स सेंटर सेटअप करने की बात की गई है, तो भी ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो सच में इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सच सेंटर्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप करवा दो आप, प्रोविजन ऑफ रिसर्च फेलोशिप, स्टडी सेशन, कोई फेलोशिप उनको दिलवा दो इन सर्विस के दौरान, स्टडी सेशंस आप लगवा दो, वर्कशॉप करवा दो, या फिर आप कह सकते हो कोई काउंसलिंग ऐसे सेशंस, FDP प्रोग्राम्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गई, ये सबसे टीचर डेवलपमेंट हो जाएगी। देन इट सेज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसे ODL कहते हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। It is recognized that ODL can be strategically employed in continuing professional development of teachers, particularly with a view to overcome the barriers of physical distance, especially making use of independent study material, online support and two-way audio-video communication। एक बेस्ट एग्जाम्पल दूँ आपको, स्वयं पोर्टल पे या आप कह सकते हो मूक, यहाँ पे फ्री कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं फॉर टीचर्स एजुकेशन नॉलेज, तो वो एक ODL जैसा ही है। फिर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशंस भी होती है, जैसे कि सिक्किम मणिपाल हो गई, बहुत सारी ऐसी है, और सिम्बायोसिस हो गई जो कि पूना में है, MBA कोर्सेज भी अब तो करवाती है डिस्टेंस में। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको जो फिज़िकल डिस्टेंस का बैरियर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप घर पे बैठ के ही ICT की हेल्प से, कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से आप पढ़ पाओगे। ऑडियो वीडियो जो वो देते हैं वो मटेरियल में, उससे भी आप कम्युनिकेट कर पाते हो। उसमें कोई सेशंस भी रखते हैं जिसमें आप टीचर से डिफ़िकल्टी अगर है आपको कोई टॉपिक में तो वो भी आप पूछ लेते हो। ऑनलाइन सपोर्ट भी मिल जाता है, स्टडी मटेरियल भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप खुद से भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो टीचर एजुकेशन में होना चाहिए, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। फिर कहा गया है एजुकेशन ऑफ टीचर्स इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है भाई। करंटली टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन दिस एरिया इज ऑफर्ड एट डिफरेंट लेवल्स। डिप्लोमा कोर्सेज हो गया, DPEd, डिग्री BPEd, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MPEd प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन कॉलेज इंस्टीट्यूट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, जिसको PTDJ बनना है वो सब ये डिग्री लेते हैं। देयर इज़ ए नीड टू रिव्यू द करिकुलम, उनको भी वो करिकुलम जो दिया गया है वो रिव्यू करो, रिफ्रेम करो, सिलेबस रिफ्रेम करो, पेडागोजी जो है
किस तरीके से पढ़ाना है, क्या कंटेंट रखना है, क्या कंटेंट नहीं रखना है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ऑब्जेक्टिव्स है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के, वो सब भी थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत हो तो लाओ, वैसी बात की गई है। फिर कहते हैं एजुकेशन ऑफ टीचर्स फॉर वोकेशनल स्ट्रीम। वोकेशन किसे कहते हैं? जो कि आज आपने एक पर्टिकुलर डिग्री ली और आपको उसके बाद तुरंत जॉब मिल गई। वोकेशनल में कैसे कोर्सेज आते हैं वो भी हम आगे पढ़ते हैं। देखो, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में 1952-53 उसमें भी बोला गया है। 52-53 वाली कौन सी कमीशन याद है आपको? इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालियर कमीशन. It was SEC that recommended and emphasized diversification of education after class 8 as a part of implementing 11-year higher secondary multipurpose scheme recommended by the commission. ये 110% मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। SEC में बोला गया है कि 11 ईयर का हायर सेकेंडरी जो मल्टीपर्पज़ स्कीम है जो रेकमेंड किया है ये SEC कमीशन में, उन्होंने भी एम्फसाइज़ किया है कि एजुकेशन में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए 8 स्टैंडर्ड के बाद, और एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द 11 ईयर हायर सेकेंडरी। कहने का मतलब है कि आप अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, सेकेंडरी, उसमें भी हायर सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी, वो सब है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। फिर कहते हैं 4 रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। ये कौन से हैं? तो देखो, एक अजमेर में है, भोपाल में, भुवनेश्वर में, मैसूर में। ये एक इम्पॉर्टेंट है। 4 रीजनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन है और वो कहाँ पे है? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर। तो कहा गया है 4 रीजनल कॉलेजेस को डेवलप करो, विच इज़ ऑल्सो नोन एज 4 RIEs ऑफ NCERT वेर एस्टेब्लिश एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर। तो ये बात किस में की गई है? तो ये बात NCFTE के ड्राफ्ट में बोली गई है। फिर कहा गया है द 4 ईयर BTech एड, BCom एड कोर्सेज, 1 ईयर B.Ed एग्रीकल्चर में हो गया, B.Ed होम साइंस में हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, were designed and offered in different RCs with varying degrees of success and the constraints connected with implementation recommendation of the commission। यानी कि ये सब वोकेशनल है गाइस। हमारा जो B.Ed है वो भी वोकेशनल है। क्यों? जैसे ही आपने ख़त्म किया यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट जॉब। ऐसे ही एग्रीकल्चर में अगर आप इस तरीके का कोर्स करते हो तो आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब मिल जाएगी। होम साइंस है, फाइन आर्ट्स है, तो ऑल दिस आर वोकेशनल। फिर आगे देख लेते हैं। देन इट सेज vision of teacher and teacher education. Teachers need to be prepared to take care for children, enjoy to be with them, seek knowledge and own responsibility towards society and work for a better world, develop sensitivity to the problems of learner, commitment to justice and zeal for social construction। यानी कि एक स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक सोसाइटल डेवलपमेंट, टीचर का खुद का डेवलपमेंट, प्रोफेशनल हो या पर्सनल डेवलपमेंट, फिर सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट वही सोशल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स का होलिस्टिक यानी कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कल्चरल, सोशल, ये सब कुछ एक टीचर के ऊपर निर्भर करता है। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इस तरीके से बनाया जाए कि टीचर होलिस्टिकली डेवलप होके बच्चों को भी होलिस्टिकली डेवलप करे, और टीचर एजुकेशन फील्ड में इस तरीके का पढ़ाया जाए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव और एफिशिएंट बन पाए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। Do like and subscribe the channel, that is NTA-UGC NET Paper to Education. Till the next time, keep learning, keep achieving. Thank you so much.